ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر میاں زاہد حسین صاحب. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اقتصادی کارکردگی کے نمبرز اگرچہ 9 مہینے کے ہیں، لیکن اس معاملے میں حکومت کی کارکردگی آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ اچھی رہی، بری رہی، متوسط رہی؟ اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ پرفارمنس رہی گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ نے جو پچھلے بجٹ میں وعدے کیے تھے، جو ٹارگٹ اور اہداف فکس کیے تھے، تو کم و بیش تھوڑا بہت کسی میں تھوڑا سا انہوں نے سرپاس کیا ہے، کسی میں تھوڑا سا کم ہے. جیسے ابھی آپ نے جی ڈی پی کا بتایا کہ 6% ٹارگٹ کے اگینسٹ انہوں نے 5.8 کیا. تو اس طریقے سے کم و بیش قریب انہوں نے تقریباً اپنے اہداف پورے کیے ہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دوستو میں آج موجود ہوں ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں کچھ خاص باتیں ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ صدر ہیں PBIF جو کہ پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئل فورم. آپ چیئرمین ہیں نیشنل بزنس گروپ. آپ ماشاءاللہ ستارہ امتیاز بھی ہیں اور سابقہ صوبائی وزیر سندھ بھی آپ رہ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب معروف صنعت کار میاں زاہد حسین صاحب کی. تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے کام کے حوالے سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اور سر کام وغیرہ کیسا چل رہا ہے؟ PBIF کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. بزنس مین اور انٹلیکچوئل جی، ان دونوں کو آپس میں ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس مین کے جو ایشوز ہوتے ہیں صنعت اور تجارت کے، ٹیکسیشن کے، ریونیو کے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مارکیٹوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل جو ہے ہمارا انٹلیکچوئل جو ہے، دانشور طبقہ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا. اس کے نزدیک جو ہے ان کی ایک اپنی ویژن ہوتی ہے، وہ اپنا وہ مہنگائی کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں، روزگار کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں، خوشحالی کے حوالے وہ سوچتے ہیں، اخلاقی قدروں کے حوالے سے وہ لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے اور دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں تو بزنس مین جو ہے وہ صرف ہارڈ کور بزنس کے ایشوز کے علاوہ ساتھ میں اخلاقی قدروں کو بھی اگر ملائے، جیسے فلنتھراپی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو اس کو بھی ساتھ ملائے تو اس کا جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ٹورڈز دا سوسائٹی مور بینیفیشل ہوگا. ٹھیک ہے، روزگار تو وہ دے ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی جب وہ اڈاپٹ کرنا شروع کرے گا تو اس میں ایک ہمارے اسلامی اس میں بھی فلاح کا تصور ہے، تو وہ چیزیں اس میں آئیں گی اور اس میں بیلنس اپروچ ہوگی. اسی طریقے سے ہمارا دانشور جو ہے وہ صرف اور صرف انہی باتوں کو کرتا رہے جو اخلاقی قدریں ہیں، جو دوسری اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کے ساتھ وہ صرف وائز اور نصیحت ہی ہو اور اس کے ساتھ عملی حقائق نہ ہو، تو اس کی جو سوچ یا اس کی سولوشن یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی تھوڑی سی بیلنس نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان کو بھی حقائق کا پتہ ہوگا تو وہ بھی ان چیزوں کو اس طرح تھوڑا سا ڈالیں گے، بزنس کمیونٹی بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھے گی، تو دونوں مل کے جب کوئی بات کریں گے تو اس میں وزن پیدا ہوگا اور سوسائٹی کے لیے وہ چیز جو ہے ایک بہتری کی طرف جائے. موجودہ بجٹ کے حوالے سے جو آپ کی وزیر خزانہ صاحب سے بات چیت ہوئی تھی اس کا کیا نتیجہ رہا؟ یہاں پر یہ بات ہوئی تھی شوکت ترین صاحب سے. جی، اصل میں یہ جو بجٹ ہے ہم نے شروع میں تو آپ کو یاد ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے جو عام طور پہ سارے حضرات ہیں جی، ان کی طرف سے بجٹ کا خیر مقدم کیا گیا تھا. اور بجٹ میں بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ پروگریسو بجٹ بھی ہے، گروتھ اورینٹڈ بجٹ بھی ہے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں، لیکن بہت سارے منفی پوائنٹس جو تھے وہ اسپیچ میں ظاہر ہے کہ اس وقت ڈسکور نہیں ہوئے تھے. جیسے جیسے ہم نے بجٹ پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ جو مختلف فیلڈز کے سیگمنٹس کے لوگ ہیں وہ اپنے حوالے سے، اپنی فیلڈ کے حوالے سے وہ بہتر اس چیز کو ان کو نالج ہوتی ہے، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. اس میں ایک کلاز انہوں نے ڈال دی ہے 203 کے، جس میں انہوں نے FPR کے چھوٹے لیول کے افسران کو بھی پاور دے دی ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو جو ٹیکس ڈسپیوٹس ہو اس کے اوپر اریسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نادہندہ، تو نادہندہ کون بتائے گا کہ نادہندہ ہے؟ انکم ٹیکس افسر یا ٹیکس افسر کی نگاہ میں تو ہر شخص نادہندہ ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نادہندہ ہے؟ کوئی عدالتی کارروائی ہوگی نا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ شخص نادہندہ ہے. تو ان کو پاور یہ دے دی گئی ہے کہ جی آپ امیڈیٹ بندے کو اریسٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی ایسٹیمیشن پہ کہ یہ شخص نادہندہ ہے. تو اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کی کافی ریزنٹمنٹ تھی، تو جو میں نے وزیر خزانہ کو بتائی کہ یہ معاملات ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میری نالج میں نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوا ہے، تو میں اس کو چینج کر دوں گا اور یہ پاور جو ہے یہ کسی افسر کے پاس نہیں ہوگی،
बल्कि एक सह रुकनी कमेटी होगी FBR में, ठीक है। जिसमें एक चेयरमैन FBR होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं टैक्स पे वो होंगे, और एक फाइनेंस मिनिस्टर खुद होंगे। तो सह रुकनी कमेटी होगी, तो वो कमेटी जो है वो ये पावर एक्सरसाइज करेगी और किसी अफसर को इख्तियार देगी। ठीक है। तो उस पर भी मैंने उन्हें कहा कि भाई ये इस तरीके से आर्बिट्रेरी किसी कमेटी को पावर दे देना, बेसिकली ये इख्तियारात हैं अदालत के। तो ये इख्तियारात आप किसी भी कमेटी को दे दें, आज शौकत तरीन साहब हैं, कल कोई और साहब होंगे, तो ये एक नंगी तलवार है जो बिजनेस कम्युनिटी के सर पे लटक रही होगी। तो इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोग खौफजदा होंगे, लोग कहेंगे कि हम इस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे जिसको जिस वक्त चाहें, चाहे आप ना करें रहे, लेकिन एक पावर तो होती है ना, वो एक नंगी तलवार है खौफजदा करने वाला। मैंने उनसे ये गुजारिश की थी, उनका अच्छा ठीक है इस पर बैठ के बात करते हैं, लेकिन वो जो पहली बात थी कि जी अफसरों को इख्तियारात वाली बात, वो तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हनीफ गौर साहब आपका मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे ये गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ की है, और इसकी खूबसूरती अपनी जगह पे है, और आपने जितने इंतज़ामात इसके किए हैं ज़बरदस्त हैं, और आप तो गुज़श्ता 5-6 साल से यहाँ पे ये तकरीबात करते हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से आपको एक मोहब्बत करने वाला दिल दिया है, इसी तरीके से एक बड़ा वसी दिल भी दिया है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ये गैदरिंग का इनेकाद किया है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो एक अजीब किस्म का मुरक्कब है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या मिनिस्टरों के लेवल के ऊपर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, वो पॉलिसी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने विजन देनी होती है, और मिनिस्टरों ने फिर उस पर पॉलिसी बनानी होती है, और फिर आगे ब्यूरोक्रेट्स ने उस पॉलिसी पे अमल करना होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें पॉलिसी साजी का अमल जो है वो भी नकाइस से भरा हुआ है, और फिर उसके बाद जो एनफोर्समेंट का अमल है उसका तो अल्लाह ही आता है। अभी आपने देखा होगा कि हम गुज़श्ता 3 साल से जो चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें पहले पेट्रोल का बहरान आया, मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत थी। उसके बाद हमने देखा कि आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया। अब उसके बाद फिर अगेन अभी हम आजकल अगर देखें ये पिछले 3-4 दिनों से, तो गैस का शदीद बहरान है, लोड शेडिंग है। अच्छा, इससे पहले हम बिजली का भी आपने देखा होगा, सारे मुल्क में ब्रेकडाउन हुआ बिजली। तो ये हुकूमत जो है इसमें इस किस्म के वाक़यात जो हैं, जो अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हैं, जिससे पता ये चलता है कि उनकी सब्जेक्ट के ऊपर शायद ग्रिप नहीं है, कमांड नहीं है। कुछ ना डिसइंटीग्रेशन है कि जहाँ पे एनफोर्समेंट के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे उसके गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। अभी हमने देखा कि कॉटन क्रॉप हमारी फेल हो गई। सर, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत नई है पर मैनेजमेंट वही सारी पुरानी है? दुनिया में ऐसे ही होता है कि हुकूमत बदलती है, और जो सरकारी अफसर जो आता है वो तो 35 साल की सर्विस के लिए आता है, ठीक है ना। तो हर हुकूमत के साथ अफसर तो नहीं तब्दील हो सकता, तो अफसर तो वही रहते हैं। बात यह है कि आपने उनसे काम लेना होता है। तो हुकूमत 5 साल के लिए आती है, तो हुकूमत ने उनसे काम लेना है। हुकूमत को ये स्किल होनी चाहिए कि वो अफसरान से कैसे काम ले सकते हैं। पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं कि जो पॉलिसियाँ जो हैं वो इम्प्लीमेंटेबल हों, जो 4 स्क्वायर्स में पूरी उतरती हों, और सही पॉलिसी भी आप बनाएं, आपका अपना विजन भी ठीक होना चाहिए, और फिर आपकी जो है आगे अफसरान के साथ एक विजन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो यही एक दुनियादारी के असूल है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें सूबाई हुकूमतों के साथ अगर ताल्लुकात को देखते हैं, तो उसमें भी कोई अच्छे मिसाली नहीं है पोजीशन। आल्दो के लिए पंजाब में PTI की अपनी हुकूमत है, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे 4 IG तब्दील होना, फिर उसमें जो चीफ सेक्रेटरी बार बार तब्दील होना, फिर कमिश्नर्स का बार बार तबादले होना। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर तो चले ठीक है, उनके अपने इस तरीके से भी है, कम्फर्ट लेवल है, लेकिन अफसरान की सतह के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसमें बेशुमार और बार बार उसमें इस तरह की तब्दीलियाँ हैं कि वो या तो उनका तब्दीली हो और उससे कोई बेहतरी पैदा हो रही हो, मगर वो तब्दीलियाँ हो रही हैं और उससे अबतरी पैदा हो रही है। तो यही चीज़ हम बाकी काबीना में भी देखते हैं, वज़रा तब्दील हो जाते हैं, और एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वज़ीर है, वो काम सही नहीं कर रहे, तो उसमें आते हैं उन्हीं जो सही काम नहीं कर रहे उनको कोई दूसरी वजारत दे दी जाती है। यही होता है, ठीक है। तो अगर वो नाअहल थे तो दूसरी वजारत को दे दीजिए, ठीक है। तो यही वजह है कि वो चीज़ें हमारे यहाँ मुल्क में ये सारे बहरान जो आ रहे हैं,
और महंगाई जो शदीद किस्म की महंगाई है, तो उसका भी यही इंडिकेशन है कि उसके ऊपर भी इंतजामी फेलियर है। आपके ख्याल में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में FPCCI का क्या किरदार है? हमारे मुल्क का जो चैम्बर है, फेडरल चैम्बर, दैट इज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी। अब हमारे मुल्क में जो पॉलिसीज हैं वो एक तरफा की होती है। हुकूमत को समझ में आती है तो वो 203 डाल देती है, जी अरेस्ट करने की पावर ले लो, फिर समझ आती है तो बोलते हैं सर ये हम हटा देते हैं या उसकी कोई नई शक्ल पैदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरफा की होती हैं। ये एक तरफा इसलिए होती है कि जब अपोजिट साइड से, दूसरी साइड से, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट जो है उनका एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो अब जो बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है वो फेडरेशन है। अब फेडरेशन में अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई उनके पास कंटेंट नहीं होगा, कोई उनके पास मटेरियल नहीं होगा, कोई उनके पास कन्विंसिंग क्या कहना चाहिए ब्रीफ नहीं होगा, ठीक, तो जब वो हुकूमत के साथ बैठ के मुशावरत करते हैं तो वो बामानी नहीं होती, बेमानी होती है, इसलिए कि उनकी बात में वज़न ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक, अब जब उनकी बात में वज़न नहीं होगा तो सामने वाला फ्रीक जो है वो फिर जिस तरह चाहे खेलेगा। अब अगर ग्राउंड में दो टीमें खेल रही हैं तो मजमूई तौर पे तो खेल का फ़ायदा होना चाहिए, और जो तमाशाई हैं जो खेल देख रहे हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनको एक अच्छी गेम देखने को मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी जो टीम है FPCCI की वो खेलती ही नहीं है, तो दूसरा ही खिलाड़ी खेल रहा है, तो उसकी वजह से ना तो गेम को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना आवाम का कोई फ़ायदा हो रहा है, और ना बिजनेस कम्युनिटी का कोई फ़ायदा हो रहा है, ना मुल्क का कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो सारी पॉलिसियाँ जो है वो वन साइडेड है, और जब वन साइडेड होंगी तो उसमें तवाज़ुन नहीं होगा। तो यही चीज़ें हम देखते हैं कि हुकूमत के फैसले जो हैं वो अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप का पाकिस्तान में क्या किरदार है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 180 के करीब जो एक्टिव ट्रेड बॉडीज हैं, जिसमें चैम्बर भी हैं, एसोसिएशन भी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। FPCCI का रोल तो आपने देख लिया कि उसमें ना कोई विजन है, ना उसमें कोई रिसर्च है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई केस स्टडी है, ना कोई सक्सेस स्टडीज है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोस्ट ऑफिस का काम है, जो मुख्तलिफ एसोसिएशन उनको अपना ब्रीफ भेजते हैं, वही वो आगे उठा के गवर्नमेंट को भेज देते हैं, तो वो एक पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। तो एक ऐसे इदारे की बहरहाल इसमें ज़रूरत है जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को विजन भी दे, उनको तरबियत भी करे, और उनको बताए कि क्या चीज़ किस तरीके से करेंगे तो दुनिया में किस तरीके से कामयाबी होगी। तो इसी तरीके से अगर हम इनको बताते हैं, और फिर हमारे जो प्रेस रिलीजेस भी आते हैं हर एक दिन छोड़ के, तो अगर आप उसमें देखते होंगे तो उसमें हम ना किसी की तारीफ करते हैं, ना किसी की बदतारीफी करते हैं, हम कोर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और उनका सोल्यूशन पेश करते हैं। आजकल जो सनतों को गैस की फरहमी रोक दी गई है, इससे मईशत पे और सनत पे क्या असरात पड़ रहे हैं? देखिए जी, ये जो गैस की सप्लाई रोक दी गई है अचानक कराची में, तो कराची में तकरीबन कोई 21,000 के करीब सनतें हैं। अब उसमें से 3,000 4,000 के करीब एक्सपोर्ट की छोटी बड़ी सनतें हैं, और ये जो बाकी सनतें हैं 16-17,000, ये इनफैक्ट जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये उसकी सप्लाई चेन है। उन्होंने नोटिफिकेशन ये परसों निकाला है कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसको तो गैस की सप्लाई रहेगी, ठीक है, लेकिन जो उसकी सप्लाई चेन है, जो दूसरी इंडस्ट्री है जिसको जनरल इंडस्ट्री कहते हैं, उसकी 100% गैस की सप्लाई बंद है। अच्छा, फिर जो कैप्टिव पावर है, जो कैप्टिव पावर का मतलब होता है कि जो अपनी बिजली खुद बनाते हैं, गैस लेके और उससे बिजली खुद बनाते हैं और उससे अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कैप्टिव पावर को भी उन्होंने 50% गैस की सप्लाई बंद कर दी। अब इसके नतीजे में आप ये देख लीजिए कि अगर एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री के लिए आपने गैस बंद नहीं की, बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके साथ जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, जो सप्लाई चेन है, उनकी तो गैस बंद हो गई, तो वो अपनी प्रोडक्शन कैसे सस्टेन करेंगे? वो अपनी प्रोडक्शन के लिए बिजली लेंगे, बिजली बहुत महंगी है, अनरिलायबल है, फिर बिजली में भी लोड शेडिंग, तो वो क्या करेंगे? तो मतलब ये है कि आपने बेयारों मददगार
इंडस्ट्री को, सनत को छोड़ दिया। अब सनत जो है, आपको सिर्फ कराची में बता दूं कि 21 अरब रुपए से लेकर 24 अरब रुपए डेली कराची की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उसमें गवर्नमेंट को तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब टैक्स लगता है। सही। अब इस सारी सिचुएशन में एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मुतासर हुआ, लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ, लोगों की बैंकों के साथ कमिटमेंट्स मुतासर होंगी, लोगों की जो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उसकी जो कमिटमेंट्स हैं वो मुतासर होंगी। तो ओवरऑल आपकी इकॉनमी का पहिया जो है ये जाम होगा। फिर आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहा कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत। मेरी उसी दिन रात को फिर MD स्वी गैस से बात हुई, जो कि बड़े अच्छे और कॉम्पिटेंट और एक प्रोफेशनल शख्सियत है, इमरान मनियार साहब। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो लोगों ने हमारे यहाँ स्टाफ में लिख दिया है, वो असल में गैर मुअय्यना मुद्दत नहीं है, ये तो 25-26 तारीख तक ये पोजीशन इसमें काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और उसके अगले 2-4 दिन में और बेहतर हो जाएगी। इनकी एक कुन्नर कसाकी एक फील्ड है जहाँ से सिंध में टंडो वाला यार के पास का, तो वहाँ से कोई 175 MMCFD गैस आती है। उसकी जो एनुअल टर्न अराउंड था, तो उस वजह से वो रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए उस प्लांट को बंद किया गया। उसकी वजह से ये गैस की सप्लाई में किल्लत हो गई है। और डोमेस्टिक गैस भी अब देख, हमारे घर में भी आज गैस नहीं आ रही। तो अब आपको पता है कि एनुअल टर्न अराउंड है, आपने मेंटेनेंस के लिए प्लांट को बंद करना, तो आप उसके लिए मुतबादल ज़राए से RLNG मंगाइए, वो सिस्टम में डालिए, ठीक है। अच्छा, उसका कॉस्ट का डिफरेंस आता है। आप बजाय इसके कि एकदम लोगों को बंद कर दें, आप लोगों को महीना पहले बताएं कि जी अगले महीने ये हमारा टर्न अराउंड है, इतना शॉर्टफॉल होना है, और ये 1 महीने के लिए हम ये प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, ताकि यह है कि लोगों की सप्लाई जारी रहे, लोगों की प्रोडक्शन चलती रहे, लोगों की कमिटमेंट्स ऑनर हों, बैंकों के साथ भी, एक्सपोर्ट के साथ भी, हर चीज़ जो भी है, तो उनकी प्रोडक्शन प्लान जो है वो मुतासर ना हो। तो ठीक है, वो 1-8 महीने उनको गैस महंगी मिलेगी, वो अपनी कॉस्ट में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, बेशक। अच्छा, अब आप अचानक किसी की गैस बंद कर दें, पानी बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, तो इस किस्म की जो एक्टिविटी करते हैं आप लोग अचानक, तो जाहिर है कि ये अचानक वाला काम तो है नहीं ना, एनुअल टर्न अराउंड तो प्लान टर्न अराउंड है आपका, तो क्यों नहीं आप इसको अच्छे तरीके से प्लान करते हैं? क्यों नहीं? अब आपके पास टर्मिनल मौजूद है, अभी हमाद अजहर साहब ने कहा कि हमारे पास तो टर्मिनल लगा दिए और इतनी तो गैस की जरूरत ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब बात यह है कि गैस की जरूरत नहीं है, तो गैस की जरूरत तो है, आप गैस का आपने क्यों नहीं मंगवाई? पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत पर मईशत पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? इस वक्त तखमीना ये है कि कोई 1 करोड़ के करीब लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट गालमन कहती है कि नहीं 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको हकायक जो है वो फील्ड में भी नज़र आ जाते हैं। मुझे तो लगता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, फिर ये कि बेरोज़गारी के बाद एक सतह वो भी आती है कि जिसमें आप रोज़गार पे तो हैं मगर आपकी सैलरी कितनी। आप ऐसे भी लोग हैं जो 20,000 तो गवर्नमेंट ने कर दिया मिनिमम वेज, लेकिन लोग 10,000 पे भी काम करेंगे, लोग 15,000 पे भी काम करने पर मजबूर है। जब काम नहीं मिलेगा तो वो 10-15,000 पे भी काम करेंगे। बेशुमार लोग दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजेस वाले। तो बात यह है कि ये हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जाती है, और वो बढ़ इसीलिए रही है कि जब आप रोज़गार को इंश्योर नहीं करते, यकलख्त फैसले करते हैं और पहले से आप चीज़ों को प्रीएम्प्ट नहीं करते, प्री प्लान नहीं करते, ठीक, और रीऑर्गेनाइज नहीं करते, तो उसके नतीजे में फिर लोगों का रोज़गार मुतासर होता है। हर आदमी जो है वो बड़ा सेठ नहीं होता कि वो जो है कि इन चीज़ों को अपने आप से एब्जॉर्ब कर सके। जी, आम लोग जो होते हैं वो नौकरी पेशा होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, दुकानदार होते हैं, छोटे कारोबारी होते हैं, जिनके पास इतना कुशन ही अवेलेबल नहीं होता कि वो इस तरीके के जर्क्स बर्दाश्त कर सकें। उनके कारोबार फिर रुइन हो जाते हैं, उनके कारोबार नुकसान में चले जाते हैं, उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, तो उससे फिर ज़ाहिर है कि गुर्बत पैदा होती है। दूसरी वजह यह है कि हमारे जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तकरीबन 600-700 अरब रुपए साल का नुकसान करती हैं। वो जो नुकसान करती हैं तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे जो आते हैं वो मेरे आपके टैक्स से आते हैं।
ठीक है। तो वो टैक्स का गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उसके बाद TIA, वापडा, स्टील मिल, फला 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 उनको वो दे देती है कि भी ठीक है आप नुकसान करो। तो अगर वो 600-700 अरब रुपया जो है वो वहाँ पे नुकसान ना हो रहा हो तो इसका मतलब यह है कि उसी 600-700 अरब से हमारे यहाँ सड़कें बन सकती हैं, हमारे यहाँ स्कूल बन सकते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं और हॉस्पिटल बन सकते हैं और इस तरीके से बेशुमार लोगों को गवर्नमेंट वो 600-700 अरब रुपया स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को कर्जा दे सकती है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जो नेशनल असेंबली में जो हंगामा आराई हुई थी, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असेंबली में हंगामा आराइयाँ दुनिया के हर मुल्क में, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन हंगामा आराई अगर पर्सनल हो, लोगों को गालम गलोच हो, लोगों को चीज़ें उठा के मारी जा रही हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हम लोग थोड़ा सा जैसे और सारे मसाइल में हम एक बैलेंस्ड सोसाइटी की बजाय एक इमोशनल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ये भी वही चीज़ है, सोसाइटी का जो झलक है वो हमें असेंबली में नज़र आती है। आप आम दुनिया मोहल्लों में भी देखें, आम रवैया भी लोगों का यही है जी, कि लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, अदम बर्दाश्त का मामला। अदम बर्दाश्त। तो बात यह है कि हमें असेंबली में भी बर्दाश्त होनी चाहिए और लेकिन बहरहाल अगेन फिर बात वही है कि हमें असेंबली में क्वालिटी नज़र आनी चाहिए और लोगों के मसाइल के ऊपर असेंबली को अपना रोल अदा करना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं जिसमें इकॉनमी का मसला सर फहरिस्त है, जिसमें स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस का मसला है, जिसमें पानी का मसला है, जिसमें हमारे और बेशुमार मसाइल हैं कि जो हम जिसमें हमारे मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि आटे का, गंदम का, चीनी का, इन सारे मसाइल को जो है बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हमारी असेंबली से कोई विजन सामने आना चाहिए। FBR के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? FBR में गालबन कोई 22,000 के करीब लोग काम करते हैं, ठीक है, और FBR जो है 20 साल कोई 4600-4700 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अगले साल इनका जो कि एक रिकॉर्ड है। या हर साल रिकॉर्ड ही होता है, ज़ाहिर है कि वो पिछले साल से तकरीबन 14 से 17% तक हमारी इकॉनमी पिछले साल के मुकाबले में अगले साल जो है वो ग्रो करती है। तो 14-15% के करीब रेवेन्यू हर साल पिछले साल से बढ़ के होता है, तो हर साल ये एक रिकॉर्ड ही था। तो वो भी एक रिकॉर्ड ही टूटा था कि रिकॉर्ड पिछले साल से भी टैक्स कम करें, लेकिन वो बहरहाल एक खसूसी हालात थे। अब यह है कि जी बहरहाल 4700 अरब के करीब ये इस साल टैक्स कलेक्ट होगा। अगले साल के लिए 5800 अरब रुपये का रेवेन्यू टारगेट है, क्योंकि 1100 अरब फालतू है, तकरीबन 25%। यानी अगर आपकी इकॉनमी 14-15% के करीब ग्रो करती है, तखमीना होता है 17% इकॉनमी की ग्रोथ का, करती 14-15%। इस साल उन्होंने 25% का रखा है। तो अब ज़ाहिर है कि ये बड़ा एक उन्होंने हाई टारगेट रखा है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के जो ख्याल है उसके मुताबिक ये शायद अचीव नहीं होगा। यानी इसमें तकरीबन 400 अरब रुपये इन्होंने ज़्यादा रखा है, ठीक है, यानी 1100 अरब में 700 अरब तो हर साल हो जाता है। अब 400 अरब रुपये इन्होंने फालतू रखा है। वज़ीर ख़जाना जो है शौकत अली, मैं तो इनका बड़ा मद्दा हूँ और एडमायरर हूँ मैं इनका। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, अगर वाकई FBR के लोग इनसे ताउन करें और इकॉनमी का साइज़ बड़ा हो जाए, अगर कोर्सिव मेजर्स करेंगे, पकड़ धकड़ करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, तो रेवेन्यू 4700 अरब नहीं। कोरोना ने एक आम आदमी और एक सनतकार को किस हद तक मुतासिर किया? आम आदमी तो ज़ाहिर है कि इससे खासा इफेक्ट हुआ है, उनका कारोबार मुतासर हुए हैं, दुकानें मुतासर हुई हैं। आपने देखा कि बड़ा इसमें लंबे अरसे तक इसमें कारोबार, दुकानें, ट्रैवलिंग, टूरिज़म, हज उम्रा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये सारे बंद रहे। कुछ कारोबार तो ऐसे हैं कि जो जुज़वी तौर पे चलते रहे, कुछ बंद हुए, कुछ चले। अब उनके लिए जो उनकी मिजरीज़ हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, वो तो हम शायद तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप यानी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा कारोबार करने वाला हो, अचानक उसका काम बंद हो जाए और 1-1.5 साल के लिए बंद हो जाए, कि एक भी उसकी टिकट ना बिक रही हो, या एक भी उसका टूर ना चल रहा हो, या एक भी उसका पिलग्रिम ना चल रहा हो, तो वो क्या करेगा? वो कहाँ से खाएगा? स्टाफ को तो लगाए कहाँ से देगा? ये एक बहुत बड़ा आदमी है, तो वो कैसे सस्टेन कर रहे होंगे? उनके घर में उनकी लाइवलीहुड, उनके बच्चे, उनकी शादियाँ, उनकी एजुकेशन, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन, वो कैसे चल रही होगी?
फिर इसी तरीके से गरीब आदमी जो है, मांझा फरोश है, रेडी वाला है, जब आपने लॉकडाउन कर देते हैं, वो क्या करता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, इसमें कुछ स्टेट बैंक की बड़ी अच्छी इसमें पॉलिसीज आ गई जो उन्होंने 300 अरब रुपया एक टर्फ स्कीम निकाली थी इंडस्ट्री के लिए, तो वो उन्होंने उनको दिए, जिसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और हमारी कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ी। और इस तरीके से जो इंडस्ट्री के साथ जो लेबर फोर्स थी उसमें रिट्रेंचमेंट नहीं हुई। उस रिट्रेंचमेंट को रोकने के लिए फिर स्टेट बैंक ने उनको पैसे दिए कि जी आप अपने स्टाफ की 6 महीने की तनख्वाहें जो है वो हमसे लेके दे दीजिए। ठीक है। तो वो भी एक स्टेट बैंक का रजा बाकर साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं और बड़े मतलब समझदार आदमी है और बड़े विनरी आदमी है और बड़े डूअर हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ। पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि अपने 2 साल बाद कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये अपनी वैक्सीनेशन जो कि चाइना से आ रही है ये इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं है। स्टोरीज चल रही हैं कि जी आपने ये वैक्सीन लगवा ली तो 2 साल बाद आप मर जाएंगे जी, और इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये होगा वो होगा। ये सब तो बुलशिट है ठीक है। और ये लोग जाहिल हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में कोई ना कोई एक पहलू, हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही है कि जहाँ एक अच्छी अच्छाई की कुव्वतें होती है वहाँ बुराई की कुव्वतें भी होती ठीक है ना। कुछ लोगों ने बुरी ही सोचनी है, बुरी ही करनी है, बुरे ही उसमें उनके दिल में आनी, बुरी बातें आनी है। तो हर सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखें प्रूव बेस्ट बाई टेस्ट वाली बात है। अब जिन लोगों ने लगवा ली है वैक्सीन वो अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे हैं, लाखों लोग लगवा रहे हैं और उसके बाद आप देखिए कि जो बीमारी का रेट है पाकिस्तान में वो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कम था और तेज़ी से नीचे आ रहा है। जी। तो इसका मतलब है दवाई इफ़ेक्टिव है। इंग्लैंड में आप देख लें, अमेरिका में आप देख लें, जहाँ जहाँ भी वैक्सीन लगी है तो उसके नतीजे में तो बीमारी का रेट नीचे आ रहा है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सूरत हाल में समझता हूँ कि अनसर्टिनिटी और इंस्टेबिलिटी। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें हमारी कौम में बड़ी रेजिलियंस है, बड़ी बर्दाश्त है। वो यूथ की परसेंटेज गालबन 60% या इससे भी ज़्यादा है। तो हमें इससे बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़े इम्कानात रखे हैं, हमारी इकॉनमी में भी बड़ा पोटेंशल है। हमने कोविड के दिनों में भी अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास करम किया और हमने वो अलमिया नहीं देखा जो कि दूसरी दुनिया में कौमों ने देखा। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया हुआ है। मेहनत से काम करें और इस मुल्क से और अपने मुस्तकबिल से हम कतन मायूस ना हो। बस हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब ज़ाहिर साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी के साथ ही नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मियाँ ज़ाहिद हुसैन के नाम से एक आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, तो आपने उसको भी फॉलो करना है लाजमी। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।